Good evening, everyone. I'm C.S. Smita Agarwal, and I have over 16 years of professional experience in the field of US accounting and taxation. I will be moderating today's session. I extend a warm welcome to all the participants and our esteemed speaker for today's session. Before we begin, let me briefly share you about GWCAA's Unnati Manch. Unnati Manch is an online knowledge sharing platform of GWCAA created to encourage continuous learning and professional growth. This webinar series is also an integral part of that initiative. Today's session is on a very relevant topic, that is e-way bill in GST, which will be deliberated by CA Shruti Singhal ma'am. CA Shruti Singhal ma'am is a practicing chartered accountant qualified in 2011. Having an experience of more than 14 years, she has done BCom honors from Jesus and Mary College, DU, and articleship from Grant and Thornton. She is providing consultancy exclusively in the field of GST since 2020 and has written more than 100 articles or posts, one of which was published in ICI Journal and delivered webinars, seminars on various professional platforms, where one was NACIN, NACIN. Her interest areas includes playing sports like badminton and tennis. To take the program forward, I would like now to invite C. Asha Sharma ma'am. She is a fellow member of ICI with over 14 years of experience, co-founder and secretary of GWCAA, and an executive member of Sales Tax Bar Association, Delhi. I request CA Asha ma'am to say a few words and introduce the theme to today's webinar. Thank you, Smita. And today we are in the fifth session of this learning series. So this program doesn't require any intro as of now. But still, I would say that in the previous four sessions, we have learned about the registration, the RCM thing, time of supply, and the place of supply, and then return filing and the record maintenance and all. And today we have another one of the most important session, I would say. अभी just webinar फॉर्मली स्टार्ट होने से पहले भी यही डिस्कस हो रहा था कि ई वे बिल अपने आप में कितना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है. तो फ्रेंड्स, ई वे बिल में आज जो कवरेज होगी इसमें हम पोर्टल रिलेटेड चीजें नहीं करेंगे. हम बाकी जितनी भी चीजें दैट श्रुति जी विल डिलीवर, बिकॉज वी हैव अ सेपरेट सेशन ऑन मंडे जहाँ पे हाउ टू जनरेट ई वे बिल ऑन ई इनवॉइस, दैट विल बी कवर्ड. एंड जो हमारे स्पीकर हैं उस दिन वो भी आज हमारे साथ हैं, सीए हेमलता सैनी जी. शी इज ऑल्सो ट्रेजरर ऑफ GWCAA, विच इज गुरुग्राम विमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन. एंड आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा होगा, सारे जितने भी सेशंस अभी तक हुए हैं. एंड आज का सेशन में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग मोर. So with this, I again welcome Shruti Singhal for giving us time. Thank you so much, and looking forward to today's session. Now over to you, Smita, once again for the proceed. आप म्यूट करो स्मिता. Yeah, I'm on. Hmm. Wait a minute. Welcome, Shruti ma'am. I request you to begin your deliberation on today's topic, and just let us know whether you will like to, take the questions in between or after your session. How would you be comfortable? Yeah. Thank you, GW. C double A. A very good G for Gurgaon, W for woman. Two words which Asha ji is taking forward. Women chartered accountants in practice. She is the leading face in Gurgaon, taking a lead where
everyone feels encouraged and want to give their best. It's a teamwork. It's because of her motivation and her encouragement only I am standing here, sitting here, delivering my webinar. So I congratulate Asha ji and Smita ji and the entire team of GWCAA. This is a very good initiative and I want to support it wholeheartedly. Whenever you require my services, please don't hesitate. I will be open to helping you as and when you require my services. I congratulate you on this very good initiative. Thank you so much. And my deliberation today will be divided into parts. So first part will be a little interactive. Second, I will take you through the case law. So the questions we will take in between only. After I complete my first segment, I will take the questions, because in the end we need to recreate the entire flow again. So instead of recreating, we'll put it into segments, that for this segment, if anyone has any doubt, any query, they can Yes. Okay. ask. Sure, ma'am. Okay. And the seminar or the webinar is very interactive. I request everyone to please participate. It is not a one-way communication, it is a two-way communication. So ई-वे बिल, जब ई-वे बिल आया नहीं था, participants are comfortable in English, Hindi? हिंदी? Both language is fine. ओके. जब ई-वे बिल आया नहीं था, तब अगर किसी को दिक्कत हो तो मैं पूरा इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, मतलब बता दीजिएगा मैसेज में. जब ई-वे बिल आया नहीं था ना, तो बहुत दिक्कत हो रही थी. पूरी जो ट्रेड इंडस्ट्री थी, ई-वे बिल आया ही क्यों, इसको हम अगर एक बार होलिस्टिकली देखें तो एक वास्ट लैंडस्केप है इंडिया का. उसमें बहुत सारे चेक पोस्ट थे. सारी गवर्नमेंट्स के पास अपना वैट रिजीम था. सारी गवर्नमेंट्स अपना वैट लगाती थी. इंटरस्टेट मूवमेंट पे CST लगता था, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, फलाना धमकाना, बहुत सारे टैक्सेस लगते थे. और उसका नतीजा ये था कि चेक पोस्ट पे लंबी कतार लगी रहती थी ट्रक्स की. गवर्नमेंट जब GST लेके आई, साथ ही साथ बहुत जल्दी 2018 में ई-वे बिल भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया. और ई-वे बिल में उन्होंने कहा कि हम जो ये चेक पोस्ट पे इतनी लंबी लाइन लगती है, इतनी लंबी कतार लगती है, इसको हम कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सपोर्ट करना चाहते हैं. तो इसलिए हम आपको एक फैसिलिटी देते हैं ऑफ ई-वे बिल, और उससे आप हमें पहले ही इंटीमेट कर देना अगर आपका कोई गुड्स ट्रैवल कर रहा हो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर फॉर द पर्पस ऑफ सेल. तो हम उसका ई-वे बिल से उसकी इंफॉर्मेशन आप पहले ही हमें दे दीजिएगा, तो हम आपको चेक पोस्ट पे चेक पोस्ट हटा देते हैं. बेसिकली आपकी फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स हो जाएगी. तो अक्रॉस इंडिया एक वन नेशन वन टैक्स की जो बात थी, वो कहीं ना कहीं हम इसमें सेटिस्फाई करके हम आपको काफ़ी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी दे देंगे. लेकिन जो इंडिया का लैंडस्केप है वो बहुत बड़ा है, और चेक पोस्ट हटाने का मतलब है कि कोई चेक ही नहीं कर रहा, कोई गुड्स कहीं से भी चले जाए, कोई किसी को सेल कर दे, कोई परचेज कर दे, और बिना अगर टैक्स के सेल परचेज हो गई तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस बहुत हैवी हो सकता था. तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम आपको सुविधा तो दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि अगर फ्रॉडुलेंट माइंडसेट हमें से डील करने पड़ जाएगा तो हमारा तो बहुत ज़्यादा टैक्स का लॉस हो जाएगा. तो उन्होंने साथ ही प्रपोज करी क्या, हैवी पेनल्टी. उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम ई-वे बिल की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन साथ ही हम हैवी पेनल्टी भी लगाएंगे अगर आप कोई वायलेशन करोगे. तो क्या ये पेनल्टी है, ये हम आगे चल के देखेंगे. अब हम देखते हैं कि ई-वे बिल दिखता कैसे है. ई-वे बिल कुछ कुछ इस तरह से दिखता है, क्योंकि हम सब प्रैक्टिस में हैं, ज़्यादातर मैं समझी हूँ, तो हमें कोई ई-वे बिल का ऐसा तो नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं. तो मैं आपको ब्रीफ में दिखा देती हूँ कि ई-वे बिल के दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी. अगर दोनों पार्ट भरे जाएं तभी ई-वे बिल वैलिड माना जाता है. अगर आपने कहा कि पार्ट ए जो कि सिंपल सी डिटेल्स है,
सप्लाई कौन कर रहा है, उसका GSTIN, प्लेस ऑफ डिस्पैच, GSTIन ऑफ द रिसिपिएंट, प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये सब बेसिक डिटेल्स भर दीजिए। और पार्ट बी जो कि जो व्हीकल में गुड जा रहा है उसकी डिटेल मांग रहा है, अगर दोनों पार्ट पूरे पूरे भरे जाएंगे तभी वो ई वे बिल वैलिड माना जाएगा, बिना पार्ट बी के ई वे बिल इनवैलिड माना जाएगा। दो चार क्वेश्चन है जो हम देख लेते हैं। क्या सारी मूवमेंट ऑफ गुड्स पे ई वे बिल एप्लीकेबल है? मतलब मेरा कहने का मतलब है, ये थोड़ा चैट बॉक्स यूज करके भी बता सकते हैं, सारी मूवमेंट ऑफ गुड्स पे क्या ई वे बिल चाहिए? मतलब कि क्या एयर से जा रहा है, रोड से जा रहा है, रेल से जा रहा है, या वाटरवे से जा रहा है, सब चीजों में ई वे बिल लगेगा, या सिर्फ अगर रोड से ही कन्वेंस हो रहा है तो ही ई वे बिल लगेगा? तो एक इसमें ना कंफ्यूजन होता है, दिमाग में आता है कि नहीं नहीं, अगर सिर्फ रोड से जा रहा है तभी ई वे बिल बनता है, जब अगर हम एयर से भेज रहे हैं तो ई वे बिल नहीं बनता, या रेल से जा रहा है तो ई वे बिल नहीं बनता। लेकिन ऐसा नहीं है, सारी ही मूवमेंट, चाहे वो रोड से है, शिप से है, एयर से है, या वाटरवे से है, सारी मूवमेंट में ई वे बिल बनता है। जब ई वे बिल, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अच्छा सारी मूवमेंट में ई वे बिल बनता है, तो ई वे बिल बनाना कब होता है, कन्वेंस से पहले या कन्वेंस के बाद? द आंसर इज ऑन ऑल मूवमेंट the e-way bill has to be made before commencement of movement. But in case of air, rail and waterways, जो e-way bill का पार्ट बी है वो हम आफ्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स भी भर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि क्या ई-वे बिल, अगर मैं एक किनारा स्टोर डालती हूँ, मैं अनरजिस्टर्ड हूँ और जो किनारा स्टोर है वो भी अनरजिस्टर्ड है, तो क्या वो मूवमेंट ऑफ गुड्स पे भी ई-वे बिल बनेगा? एक अनरजिस्टर्ड पर्सन दूसरे अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से दूसरे अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास जा रहा है, तो क्या उसमें भी ई-वे बिल बनेगा? द आंसर इज नो। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन एक अनरजिस्टर्ड पर्सन या किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो ही ई-वे बिल की एप्लीकेबिलिटी आती है। तो क्या अगर सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है बट रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, क्या इस केस में भी ई-वे बिल एप्लीकेबल होगा? तो इसके लिए जो ई-वे बिल रूल्स हैं, रूल 138, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि अगर रजिस्टर्ड सप्लायर सेंड कर रहा है तो उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है ही है। लेकिन अगर जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है लेकिन जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, सो इट विल बी डीम्ड दैट द रिसिपिएंट इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स और उसके ऊपर ई-वे बिल एप्लीकेबल होगा। अच्छा, क्या सारी मूवमेंट ऑफ गुड्स जो कि 50,000 से ज्यादा है उसके ऊपर ई-वे बिल लगेगा? ये 50,000 लिखा कहाँ पर है? हाँ, तो ये रूल्स में लिखा है कि 50,000 से ज्यादा के गुड्स होंगे तो उसके ऊपर ई-वे बिल लगेगा। अच्छा, ये 50,000 कौन सी वाली फिगर पकड़नी है? टैक्स के पहले वाली फिगर पकड़नी है या टैक्स के बाद वाली फिगर पकड़नी है? टैक्स के बाद वाली फिगर मतलब है कि अगर नेट ऑफ बिफोर टैक्सेस अगर 45,000 का भी है, 18% लगाओ तो वो 50,000 प्लस का हो जाएगा। तो टैक्स लगाने के बाद की फिगर देखनी है और 50,000 मिलाना है। तो क्या सारी मूवमेंट जो कि 50,000 से ऊपर है उनके ऊपर ई-वे बिल लगेगा? द आंसर इज यस, बट इसके दो एक्सेप्शंस हैं। दो एक्सेप्शन क्या है कि अगर एक जॉब वर्कर है, उसके पास गुड्स भेजे जा रहे हैं बाय द प्रिंसिपल और गुड्स भेजे जा रहे हैं दूसरी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, तो इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स है प्लस जॉब वर्कर के पास गुड्स भेजे जा रहे हैं, तो
बिना लिमिट के, मतलब 50,000 के नीचे भी होगा तो भी ई वे बिल लगेगा, बिना लिमिट के ई वे बिल एप्लीकेबल होगा। एक और सिनेरियो उन्होंने डेवलप किया जो कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स के ऊपर है। उन्होंने कह रखा है, गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन निकाल रखी है कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में अगर मूवमेंट है, उन्होंने एग्जेम्पशन निकाल रखी है कि इंटरस्टेट मूवमेंट फॉर हैंडीक्राफ्ट गुड्स इज एग्जेम्प्ट। आप इंटरस्टेट मूवमेंट कर लो लेकिन आप रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट हो। बट उस केस में भी उन्होंने कहा है कि ई वे बिल बनाना जरूरी है। तो दो सिनेरियो में उन्होंने 50,000 की लिमिट को अंडू किया हुआ है और कहा है कि इन दो केसेस में, जॉब वर्क और हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केसेस में, आपको ई वे बिल बनाना ही बनाना है विदाउट एनी लिमिट। अच्छा, क्या अभी मैं बता रही थी अगर पार्ट ए और पार्ट बी है तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों लिख बनेंगे तभी ई वे बिल वैलिड बना जाएगा। क्या कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि हमने पार्ट बी नहीं बनाया लेकिन फिर भी ई वे बिल वैलिड रहेगा? द आंसर इज यस। गवर्नमेंट ने प्रोविजंस में लिख के दिया है कि अगर आपका कन्वेंस में जा रहा है एक गुड्स और आपकी कन्वेंस चेंज हो जाती है क्योंकि ड्यू टू ब्रेक डाउन या मल्टी मॉडल मैकेनिज्म से आप डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंस से लेके जा रहे हो, आप थोड़ा सा रास्ता आप रोड से ट्रैवल कर रहे हो, फिर थोड़ा सा रेल से, फिर बाद में अगेन रोड से। तो अगर आप मल्टी मॉडल वेज से आप गुड्स पहुंचा रहे हो या आपका जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है वो, आपकी जो व्हीकल है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, आपको नई व्हीकल लेके आनी पड़ती है उसको रिप्लेस करने के लिए। तो उन्होंने प्रोविजन दे रखा है कि आपकी जब जब व्हीकल ब्रेक डाउन हो या चेंज ऑफ व्हीकल हो, आप पार्ट बी को अपडेट कर दीजिएगा। लेकिन दो सिनारियों में उन्होंने कहा है कि अगर आप पार्ट बी को अपडेट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। कौन से दो सिनारियो उन्होंने रखे? कि सपोज आप एक बड़े ट्रांसपोर्टर हो और जो कंसाइनर है ऑफ गुड्स वो अपनी लोकेशन से ट्रांसपोर्टर तक गुड्स पहुंचा रहा है और जो दोनों के प्लेस में डिफरेंस है वो अप टू 50 किलोमीटर का रेडियस में है दोनों प्लेसेस। कंसाइनर पहुंचा रहा है ट्रांसपोर्टर के लोकेशन तक, क्योंकि क्या होता है ट्रांसपोर्टर का जो मेजर हब्स होते हैं वो बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं लेकिन वहां तक गुड्स पहुंचाने के लिए छोटे छोटे टेम्पोस यूज होते हैं। तो अगर जो छोटे छोटे टेम्पोस में माल जा रहा है टिल द लोकेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टर, उस सिनेरियो को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया कि अगर आप इस टाइम इस इंफॉर्मेशन को पार्ट बी में नहीं भी भरोगे तो भी चलेगा। उन्होंने इस सिचुएशन को रिवर्स करके भी बोला है। दो सिचुएशन बोली है, एक तो जब ट्रांसपोर्टर के पास तक पहुंचाया जा रहा है बाय द कंसाइनर, और इसका रिवर्स में कि अगर कंसाइनी का जो प्लेस ऑफ लोकेशन है कई बार ये बहुत छोटी छोटी जगह पे होता है प्लेस ऑफ डिलीवरी, और जो ट्रांसपोर्टर का जो मेजर हब है वो एक बड़ी जगह पे होता है। तो ट्रांसपोर्टर की मेजर प्लेस से कंसाइनी तक जो गुड्स जा रहा है छोटे छोटे टेम्पोस में वगैरह में, और आपने वो इंफॉर्मेशन पार्ट बी में अपडेट नहीं करी, तभी भी आपका ई वे बिल वैलिड रहेगा और आपके ऊपर कोई वायलेशन नहीं मानी जाएगी। अच्छा, जब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मूवमेंट ऑफ गुड्स कैन बी डन विदाउट नॉलेज ऑफ द रेसिपिएंट, कहने का मतलब है जब ई वे में बनता है तो इस इंफॉर्मेशन को तीन जगह दिया जाता है, एक तो ट्रांसपोर्टर को, सप्लायर को और रेसिपिएंट को। ये नॉलेज रेसिपिएंट को क्यों पास ऑन की जाती है? क्योंकि अगर इनएडवर्टेंटली या इंटेंशनली अगर किसी रेसिपिएंट के नाम में कोई ई वे बिल बन रहा है तो रेसिपिएंट शुड नो कि भाई हमारे तुम्हारे नाम में किसी ने फलाना जन ने ई वे बिल रेस किया है। तो रेसिपिएंट के पास भी गवर्नमेंट ने पावर दे रखे हैं कि उनके पास भी इंफॉर्मेशन आएगी, और अगर वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि या तो कोई एरर है या दे डोंट एक्सेप्ट द ई वे बिल, दे हैव द राइट विद इन 72 आवर्स वो उस ई वे बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर वो ई वे बिल को रिजेक्ट नहीं करते तो वो माना जाएगा डीम्ड एक्सेप्टेड।
व्हाट इफ द कंसाइनी रिफ्यूजेस टू टेक द गुड्स? ये एक बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो है जिसमें कंसाइनी जो है, कई बार क्या होता है कि हमने भेज तो दिया गुड्स को, बट कुछ हमारे बीच में ट्रेड टर्म्स बिगड़ गए या कुछ रिलेशन में एरर्स आ गए और कंसाइनी ने कह दिया अब मैं तुम्हारा गुड्स नहीं उठाता। गेट तक उसके गुड्स आ चुके हैं, लेकिन अब वो कह रहा है कि नहीं मैं गुड्स ले नहीं रहा, अब तुम इसको ले जाओ वापस। तो अब ई वेबल कैसे जनरेट होगा? क्वेश्चन ये उठता है कि अब ई वेबल, ठीक है हमने पहुंचा दिया, हमने इनवॉइस बनाया, ई वेबल बनाया, हमने पहुंचा दिया, लेकिन अब कंसाइनी रिफ्यूज कर रहा है, तो अब क्या किया जाएगा? अब जो सप्लायर है उसको अपने रेजिडेंस पे बैठे बैठे ही एक क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, और उस क्रेडिट नोट के सपोर्ट पे एक ई वेबल बनाना पड़ेगा, और उस ई वेबल से वो गुड्स को वापस अपने जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां तक लेके आएगा। इफ द व्हीकल टेकिंग गुड्स हैविंग ई वेबल इज चेंज, तो ये हमने डिस्कस कर लिया, अगर व्हीकल चेंज हो जाती है तो हमें पार्ट बी को अपडेट करना है, और पार्ट बी में हर टाइम जो अपडेटेड व्हीकल की डिटेल है वो इनपुट करनी है, क्योंकि कहीं पे भी अगर ऑफिसर ने आपके गुड्स को पकड़ा और वहां पे आपकी जो ई वे बिल की जो वो है डिटेल्स और आपके जो एक्चुअल गुड्स या आपके एक्चुअल व्हीकल की डिटेल्स है वो मैच नहीं कर रही, तो वो आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। वेदर ई वे बिल इज रिक्वायर्ड फॉर सेल विद इन अ स्टेट बट मूवमेंट थ्रू अनदर स्टेट। अगर हम दिल्ली की बात करें तो सपोज मैं ईस्ट दिल्ली में बैठी हूँ और जो गुड्स जा रहे हैं वो जा रहे हैं साउथ दिल्ली तक, लेकिन वो नोएडा के थ्रू जा रहे हैं, तो स्टेट चेंज हो गई। आप देखिए दिल्ली से गए यूपी और यूपी से गए वापस दिल्ली, लेकिन इन बिटवीन जो मूवमेंट है वो दूसरी स्टेट में हो गई। अब तो पूछा जाता है कि क्या अब इस सिनेरियो में ई वेबल बनेगा, क्योंकि सेल तो हो ही नहीं है, सेल तो आपकी दिल्ली से दिल्ली में ही है। द आंसर इज यस, इस सिनेरियो में भी ई वेबल बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें पकड़ना है नॉट सेल बट मूवमेंट ऑफ गुड्स। ई वेबल इज जनरेटेड ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स, वेदर इट इज द रीजन इज सेल और अदर देन सेल। हमें पकड़नी है मूवमेंट ऑफ गुड्स, क्योंकि इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है, तो हमें ई वेबल जनरेट करना है। अच्छा, इसका सिनेरियो चेंज हुआ, डीटीए और एससीजेड के बीच में सप्लाई हो रही है और दोनों एक ही स्टेट में है। डीटीए भी सपोज दिल्ली में ही है, यूपी में ही है, और एससीजेड भी यूपी में ही है, नोएडा एससीजेड। तो क्या अब ये वेबल बनना है क्योंकि एक ही स्टेट में है? द आंसर इज क्योंकि एक ही स्टेट में है तो इंटर स्टेट तो ही नहीं, मूवमेंट ऑफ गुड्स इंटर स्टेट नहीं हुई तो ई वेबल नहीं बनना। लेकिन विद इन द स्टेट भी अगर सारी गवर्नमेंट ने लिमिट को बढ़ा रखा है, जैसे दिल्ली में लिमिट है 1 लाख रुपए, विद इन द स्टेट भी अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स होती है और वो मोर देन 1 लाख रुपीज होती है, तो उस केस में ईवेबल बनता है। तो इस केस में भी उस स्टेट की लिमिट देखनी है, अगर उस स्टेट की लिमिट एक्सीड कर रही है तो ईवेबल बनेगा, लेकिन अगर सिर्फ 50,000 से ज्यादा है और दिल्ली के केस में 1 लाख से कम है तो ईवेबल नहीं बनेगा। कैन ईवेबल बी कैंसल्ड? आपसे कोई गलत डिटेल चली गई तो क्या ईवेबल कैंसिल किया जा सकता है? द आंसर इज यस, ईवेबल कैंसिल किया जा सकता है विद इन 24 आवर्स। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है कि आपने ईवेबल बनाया, आपने ट्रांसपोर्टर को दे दिया और ट्रांसपोर्टर गुड्स को लेके चला गया, बीच में इंस्पेक्शन हो गई गुड्स की। अब आप कह रहे हो अरे नहीं नहीं मेरे गुड वो ईवेबल में कुछ एरर था, वो इंटेंशनल नहीं है वगैरह, मेरे को आप वो ईवेबल कैंसिल करने दो, तो अब कैंसिल नहीं हो सकता। इंटरसेप्शन के बाद ईवेबल कैंसिल नहीं हो सकता। तो ये हमने ये हमने रूल 138 पूरा पूरा पढ़ लिया कि उसमें ईवेबल किस सिनेरियो में बनेगा, कब नहीं बनेगा, कितने वैल्यू पे बनेगा, पार्ट बी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है,
और विद इन द स्टेट का क्या मतलब है? अब क्योंकि हम 2025 में बैठे हैं, तो ई वे बिल में लेटेस्ट में क्या चेंजेस हैं एक बार हम ये देख लेते हैं। अब तो 2 पोर्टल्स आ गए हैं। पहले ई वे बिल का एक ही पोर्टल था, अब ई वे बिल 2 पोर्टल भी इफेक्टिव हो गया है। अब मैंडेटरी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया है इफेक्टिव April 1, 2025। इसका मतलब है कि जब आप जनरेट करने जाते हो ई वे बिल पोर्टल पे, तब आपके पास एक ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल पे जाता है, और जब वो ऑथेंटिकेट होता है तभी आप, ये सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए बनाया गया फीचर है कि जब ओटीपी डबल ओटीपी हो गया ना, एक तो आप लॉग इन कर रहे हो फिर ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप डालोगे तभी आप ई वे बिल के पोर्टल में घुस सकते हो। थर्डली, आपका जो जनरेशन टाइम लिमिट है, जो आपका बेस डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस है, डिलीवरी चलान है, कुछ भी है, उसके बेसिस पे आप ई वे बिल जनरेट कर रहे हो ना, तो वो जो बेस डॉक्यूमेंट की डेट है वो 180 डेज से ज़्यादा नहीं हो, ज़्यादा पीछे की नहीं होनी चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट, आपका जो ई वे बिल है वो अगर आपको जितना टाइम लिमिट मिला है उस ई वे बिल में, वो ई वे बिल जिस टाइम लिमिट के लिए एक्टिव है, वैलिड है, अगर वो आपको वैलिडिटी को एक्सटेंड कराना है, किसी वजह से ब्रेक डाउन हो गई, आपका जो ई वे बिल में वैलिडिटी है वो ई वे बिल एक्सपायर हो गया, तो आप उस सेम ई वे बिल को एक्सटेंड भी करा सकते हो। जो एक्सटेंड करा रहे हो आप ई वे बिल, वो आप मल्टीपल टाइम्स भी एक्सटेंड करा सकते हो। जो मल्टीपल टाइम्स आप एक्सटेंड करा सकते हो, वो मैक्सिमम डेज अब उन्होंने लिमिट कर दिया 360 डेज तक की आप एक्सटेंड करा सकते हो। अब फॉर्म ENR-03 भी इफेक्टिव हो गया है। पहले क्या था, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन थे, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि सप्लायर रजिस्टर्ड है या रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, बट जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्टी है वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है। तो अभी तक हमारे पास क्या सिनेरियो था कि जो अनरजिस्टर्ड पार्टी थी वो ई वे बिल को रेज नहीं कर सकती थी। विद इफेक्ट फ्रॉम 11/2/2025 उन्होंने एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया है, फॉर्म ENR-03। इसके तहत अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को ई वे बिल बनाना है तो वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है थ्रू दिस फॉर्म विद द गवर्नमेंट, और GSTIN की जगह उसको एक यूनिक 15 डिजिट एनरोलमेंट आईडी मिलेगी। उस एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे वो ई वे बिल जनरेट कर सकता है। अभी हमने ये फर्स्ट सेगमेंट खत्म किया है, अभी हम चैट बॉक्स में जो क्वेश्चंस हैं वो देख सकते हैं। संध्या संध्या रानी जी का क्वेश्चन देख लो। Material sent for sample purpose and returned to supplier, then is it required to make e-way bill in both cases? And if answer is yes, then what will be the process? डिलीवरी चालान के बेसिस पे ये ई वे बिल बन जाएगा। ये जो सैंपल पर्पस के लिए जा रहा है ना, ये डिलीवरी चालान के बेसिस पे बनेगा। Sure. और Second बोथ question. केसेस में बनेगा, रिटर्न के केस में भी एक डिलीवरी चालान के बेसिस पे बन जाएगा। ओके, तो whoever is sending the material वो डिलीवरी चालान क्रिएट करेगा और उसके बेसिस पे ई वे बिल क्रिएट होके मटेरियल मूव हो जाएगा। हाँ जी। ओके, और फिर आशा जी का एक क्वेश्चन है। Can there be situation where goods reached destination in less than 72 hours and recipient denies accepting? Then supplier takes back those goods on same rejected EWB and separate EWB required or separate EWB required. सेपरेट ही होएगा, क्योंकि रीच द डेस्टिनेशन जो अब वापस आ रहे हैं गुड्स, तब अगर बीच में किसी ने जब्त कर लिए गुड्स, किसी ने इंटरसेप्ट कर लिए, तो वो मैच करने की कोशिश करेंगे ना, और मैच करेंगे तो वो डेस्टिनेशन और सप्लायर प्लेस मैच नहीं करेगी। तो in that case also is it suggested to raise the credit note? Yes, it is suggested to raise the credit.
बिकॉज नाउअडेज आईएमएस में इशू आता है, आईएमएस में वो क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर देते हैं, और सेल को तो मेहनत नहीं करते कुछ रिजेक्ट करने की, सामने वाली जो पार्टी है, ये इशू। क्रेडिट नोट को ही एक्सेप्ट करते हैं, क्रेडिट मतलब, नोट को रिजेक्ट करते हैं, और और सेल सेल को। बिल पे ध्यान नहीं देते कि उसका आईटीसी भी तो आ रहा है, वो क्रेडिट नोट को सबसे पहले रिजेक्ट करते हैं। बिकॉज बेसिकली यहाँ पे तो आईटीसी भी मिल रहा है सप्लायर को, और आईटीसी क्रेडिट मतलब प्लस माइनस हो रहा है। आइडियली तो उन्हें दोनों रिजेक्ट करना चाहिए। आइडियली तो आइडियली। दोनों। हम्म। और अगर वो नहीं करते तो अभी इसमें अमेंडमेंट आ गई थी ना। कीप पेंडिंग की। हाँ, क्योंकि वो ये सिचुएशन को तो अभी केटर कर लिया था गवर्नमेंट ने अपनी किसी हाँ, एफएक्यू। आईएमएस में अभी एक अपडेट आया है जिसमें वो कीप पेंडिंग का उन्होंने डाला है उसको, कि आप 1 टैक्स पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हो। हाँ, तो आपको ये सप्लायर से कोऑर्डिनेशन बढ़ानी पड़ेगी कि भाई वो आपका जो क्रेडिट नोट ना रिजेक्ट करे या दोनों को एक्सेप्ट कर ले। अग्री। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इस एक नेटवर्क को डेट शुड दिस प्लेस। हाँ, वो एक अप्लाई और है। क्वेश्चन आया है, where no movement vehicle involve like transport of goods from first floor to second floor of हाँ, different entity, whether हाँ, part A is mandatory. हाँ, ये मैं आपको सवाल का जवाब अभी दूंगी, आगे अच्छा, दूंगी। ठीक है। ओके ओके। टेम्पररली नो। टेम्पररली ओके आंसर इज नो। नो, ओके नॉट, ई-वे बिल नॉट रिक्वायर्ड। ओके ओके। बट इसका हम करेंगे आगे। हाँ, ठीक है। लॉ में कहाँ लिखा है या कैसे आपको हाँ, इंटरप्रेट करना है, ठीक है। वो चीज हम देखें। बस, अब हम पर, बस। अपना नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हम्म। तो इसमें हम ई-वे बिल की वैलिडिटी डिस्कस करेंगे। अभी तक क्या था कि जो ई-वे बिल था, ई-वे बिल की वैलिडिटी है 200 किलोमीटर्स की। इसको पढ़ना कैसे है कि अगर आपका गुड्स जा रहा है फ्रॉम लोकेशन ए दिल्ली टू लोकेशन बी गुड़गांव, और जो डिस्टेंस है वो है 168 किलोमीटर्स। दिल्ली टू गुड़गांव 168 किलोमीटर्स एंड तक जा रहा है, और दिल्ली के भी इस एंड से शुरू हुए हैं। तो अब कितना टाइम मिलेगा गुड्स को पहुंचाने के लिए? आज मैंने इनवॉइस बनाया, मैं इस इनवॉइस के बेसिस पे हमने देखा 180 डेज तक ये इनवॉइस ई-वे बिल रेस कर सकते हैं। तो मैंने कल बैठ के उस पे ई-वे बिल रेस किया। कल 4 बजे मैंने रेस किया। तो अब मेरे को इसकी वैलिडिटी कैसे असर्टेन करनी है? मेरे को कल 4 बजे से, जो आज 5th है, 6 के 4 o'clock से एंड ऑफ द डे करना है, दैट इज 12 PM। और फिर 1 डे की वैलिडिटी है, तो नेक्स्ट डे 7th के 12 PM तक ये ई वे बिल वैलिड रहेगा। तो मेरे को कल शाम के, ऑल्दो मैंने 4 बजे उसको जनरेट कर दिया था, लेकिन इन ऑल सिनेरियो 12 बजे तक टाइम फ्री मिलता है, और उसके बाद 1 डे देखना है। तो नेक्स्ट डे के 12 PM तक, रात के वो, नेक्स्ट डे के रात के 12 बजे तक वो इफेक्टिव रहेगा, वैलिड रहेगा, और आप गुड्स उस दौरान सेंड कर सकते हो। ठीक है। इसमें 2 एक्सेप्शन डाले हैं उन्होंने। ये तो नॉर्मल सिनेरियो ना 200 किलोमीटर का, उसमें उन्होंने 1 डे इन केसेस अदर देन का मतलब है 2 एक्सेप्शन डाली हैं। एक तो उन्होंने कहा है ओवर डायमेंशनल कार्गो। ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होता है? एक बड़ा सा ट्रक जो कि बहुत लंबे से उसके पीछे वो लगे हुए होते हैं, तो वो एक ट्रक को मूवमेंट के लिए बहुत टाइम लगता है, तो इसको बोलते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। उस केस में उन्होंने अलग लिमिट बनाई है, अप टू 20 किलोमीटर 1 डे। उसके लिए लिमिट उन्होंने इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि वो इतना बड़ा ट्रक है, उसकी मूवमेंट में बहुत टाइम लगता है, बहुत स्लो चलता है वो। तो इसलिए उसकी लिमिट कर दी है, टाइम लिमिट इंक्रीज कर दी है। ओनली अप टू 20 किलोमीटर इन 1 डे भी अगर वो चलता है तो ठीक है। और उन्होंने सेकेंड जिसकी लिमिट को एनहांस किया है वो है मल्टी मोडल शिपमेंट।
in which one involves transport by ship. मतलब है कि आपका गुड्स जो है मल्टी मॉडल शिपमेंट, आप थोड़ा सा रास्ता रोड से कर रहे हो, थोड़ा सा शिप से, थोड़ा सा ट्रेन से, और फिर रोड से, और फिर उसके घर तक पहुंच गया, सप्लायर की रिसिपेंट की कंसाइनी की डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। तो ये मल्टी मॉडल हो गया ना। बट अगर इसमें एक लेग जो ऑफ मूवमेंट है वो शिप से हो रहा है, तो उस केस में भी आपको एक्सेप्शन वाले 20 किलोमीटर्स देखने हैं। और अगर जैसे हमने 168 किलोमीटर्स देखा था तो हमें एक दिन मिला था, अगर 220 किलोमीटर जाना हो तो 1 एडिशनल डे फॉर ईच एक्स्ट्रा फॉर नेक्स्ट 200 किलोमीटर्स। ठीक है, ये जो लिमिट थी ये पहले थी कितनी, 100 किलोमीटर्स। कहने का मतलब है कि 1/1/2021 से पहले ये लिमिट 200 किलोमीटर की 100 किलोमीटर थी। इसको अगर हम इस तरह से देखें, हमने 168 किलोमीटर तय करने थे, है ना, दिल्ली से गुड़गांव में हमें एक दिन मिला था। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या होता था, 1/1/21 से पहले हमें 168 का मतलब था हमें 2 दिन मिल रहे थे दिल्ली से गुड़गांव तक माल पहुंचाने के लिए। गवर्नमेंट ने ये लिमिट 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक क्यों कर दी? इसका अगर कोई आंसर दे सकता है कि इतनी सब्सटैंशियल इंक्रीज क्यों कर दी गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट? कि एक एक गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पहले वो 2 दिन दे रहे थे, अब उन्होंने उसको रिड्यूस कर दिया, एक ही दिन मिलेगा। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर एक्सप्रेसवे टू अवॉइड रीसेंडिंग। ये प्रकाश सर ने बिल्कुल सही जवाब दिया, टू अवॉइड रीसेंडिंग। रीजन ये था कि गवर्नमेंट जब इंट्रोड्यूस कर रही थी तो काफी लीनियंट थी अपने एटीट्यूड में, अपने लॉस में, कि भाई हम अपने टैक्स पेयर को बहुत सारी सुविधा देना चाहते हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना चाहते हैं। लेकिन जहां वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देते थे वहां पे जो फ्रॉडुलेंट माइंडसेट है वो उनको उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यूज करना था कहीं ना कहीं। तो वो क्या करता था कि एक ही ई वे बिल और एक ही इनवॉइस पे 2 बारी ट्रक की मूवमेंट कर देता था, सेम ट्रक की। तो टू एंड फ्रो वो कर रहा पा रहा था ट्रक विद द सेम ई वे बिल, सेम इनवॉइस। तो इससे उनकी टैक्स चोरी हो रही थी कि एक माल तो जेन्युइन में गया, दूसरा उनका जो गुड्स गया वो 2 नंबर का चला गया। तो इसलिए टू अवॉइड इवेजन ऑफ टैक्स उन्होंने ये देखा कि ऐसा इवेजन ऑफ टैक्स बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उन्होंने लिमिट को रिड्यूस कर दिया। ये सर्कमस्टेंस, अच्छा, ये एक्सटेंशन ऑफ ई वे बिल की बात कर रहा है कि इन द फॉलोइंग circumstances ई वे बिल कैन बी, पार्ट बी की वैलिडिटी जो है वो एक्सटेंड की जा सकती है ई वे बिल पोर्टल पे जाके, और एक्सपायरी के विद इन 8 आवर्स इसकी वैलिडिटी एक्सटेंड की जा सकती है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि कुछ जगह पे, एक सेकेंड आप होल्ड करिए, एक हाँ, कुछ जगह पे जो ई वे बिल है उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वेयर गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड, वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर स्पेसिफाइड इन एनेक्चर। एक एनेक्चर दिया हुआ है उन्होंने, और उसमें लिखा है कि ये सारे गुड्स की अगर मूवमेंट हो रही है तो इस पे ई वे बिल लगेगा ही नहीं, आप मूवमेंट करिए और ई वे बिल मत बनाइए। और वो कौन से गुड्स हैं? एक तो है सप्लाई ऑफ एलपीजी, जो गैस के सिलेंडर जाते थे ना, उसके मूवमेंट पे ई वे बिल नहीं बनता।
फिर केरोसिन ऑयल अंडर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके ऊपर भी ई वे बिल नहीं लगता। पोस्टल बैगेज ट्रांसपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसके ऊपर ई वे बिल नहीं लगता। नेचुरल कल्चर पर्ल और सेमी प्रेशियस स्टोन्स, कोई भी स्टोन्स मेटल्स ये सब जा रहे हैं इनके। ज्वेलरी गोल्ड स्मिथ सिल्वर स्मिथ, मतलब कोई ज्वेलरी की आइटम, ये जो एक्सपेंसिव आइटम्स है ना, इसके ऊपर उन्होंने ई वे बिल एप्लीकेबल नहीं कर रखा। क्यों? क्योंकि जब एक्सपेंसिव कुछ ऐसी ज्वेलरी जा रही है और उसकी इंफॉर्मेशन आप लोड करके गवर्नमेंट को दे दो, तो कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन लीक होके किसी फ्रॉडुलेंट माइंडसेट के पास भी ये इंफॉर्मेशन जा सकती है कि भाई ये वाले टेम्पो से ये जा रही है, ज्वेलरी जा रही है, तो वो उसको चोरी करने का मतलब थेफ्ट का रीजन से वो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट उस पर हटा दी गई है। बट एक एक्सेप्शन डाली गई है कि इमिटेशन ज्वेलरी अगर जा रही है तो हाँ, उस पर ई वे बिल बनेगा। करेंसी जा रही है मतलब कैश जो कि बैंक्स में जाता है एक बैंक से दूसरे बैंक, उसके ऊपर ई वे बिल नहीं लगेगा। पर्सनल आइटम और हाउस होल्ड इफेक्ट, इसके ऊपर नहीं लगेगा। मैं अपना घर चेंज कर रही हूँ, एक जगह से दूसरे घर में अपने जो गुड्स हैं वो लेके जाती हूँ, तो उसके ऊपर ई वे बिल नहीं बनाना। कोरल अनवर्क और वर्क कोरल, तो ये सब प्रेशियस आइटम में आती है और इसके ऊपर ई वे बिल नहीं लगता। अब आशा जी का एक सवाल था कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जा रहा है और इसके ऊपर ई वे बिल बनेगा कि नहीं, तो उसका आंसर इसी पॉइंट में निकल के आता है कि द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज व्हीकल। तो आपने फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर लेके गए या रिक्शा से 2 गली दूर अपने सप्लायर ने अपने कस्टमर को भेज दिया, रिक्शा से भेजा लेकिन, या हाथ गाड़ी से भेज दिया। अगर आप चांदनी चौक की बात करो तो हाथ गाड़ी वो सब बहुत चलता है वहां पे, तो उस केस में ई वे बिल नहीं लगता। उन्होंने एग्जाम्पशंस में डाल दिया है, 14 सबसेक्शन जो है वो एग्जाम्पशंस की बात कर रहा है कि इन केसेस में ई वे बिल नहीं लगता। वेयर गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कस्टम्स पोर्ट टू आईएसटी, जो ये दोनों कस्टम के ही एरिया है, बेसिकली कस्टम में ही के अंडर ही अगर गुड्स हैं, कस्टम के वेयर हाउस से एक कस्टम पोर्ट से जा रहा है आईएसटी तक जा रहा है, तो ये कस्टम का ही एरिया होता है। तो कस्टम के एक एरिया से दूसरे एरिया जा रहा है, उसमें ई वे बिल नहीं लगता। मूवमेंट of goods in such areas as notified by Rule 138(14)(d) of the SC/ST rules। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर अभी हम पढ़ रहे हैं सीजीएसटी रूल्स, तो सीजीएसटी रूल्स बनाते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने लिख दिया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है हम उसको पावर्स दे रहे हैं अंडर दिस सबसेक्शन एंड दिस क्लॉज कि वो अपने एसजीएसटी रूल्स में कोई भी एरिया नोटिफाई कर सकती है। एरिया मतलब डिस्टेंस या कोई लोकेशन नहीं, एरिया मतलब कोई भी एस्पेक्ट, जिस एस्पेक्ट में वो चाहती है कि ई वे बिल ना लगे। जैसे अगर दिल्ली का बात करे जाए तो दिल्ली जीएसटी एक्ट में उन्होंने लिखा है कि 1 लाख रुपए तक के गुड्स तक पे कोई ई वे बिल नहीं लगेगा। तो वो उसने कहाँ पे स्पेसिफाई किया है दिल्ली ने? दिल्ली जीएसटी रूल्स में ये सेक्शन रूल 138(14)(d) ऑफ द दिल्ली जीएसटी रूल्स में ये बात लिख के उन्होंने बोली है कि 1 लाख रुपए तक के गुड्स पे आपको इनवॉइस ई वे बिल नहीं बनाना। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर दी गई है कि वो अपने स्टेट में जो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है उस पे अपने हिसाब से एग्जाम्पशन डाल सकती है। फिर when the goods are transported as specified in नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 CTR, ये नोटिफिकेशन बात कर रही है एग्जेम्प्ट गुड्स की। जो भी एग्जेम्प्ट गुड्स है उसकी मूवमेंट में गवर्नमेंट के पास टैक्स की रेवेन्यू के लॉस का तो खतरा है नहीं कि भाई पैसा टैक्स चोरी कर देगा, तो इसलिए उन्होंने लिख दिया कि भाई उनकी मूवमेंट की आप ई वे बिल मत बनाइए। लेकिन एक एक्सेप्शन डाली डी ऑयल केक की कि भाई डी ऑयल केक के केस में आपको इनवॉइस बनाना है।
where goods being transported are alcoholic liquor for human consumption, ये भी जीएसटी के दायरे के बाहर है. पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, मोटर स्पिरिट, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल. तो ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं और अल्कोहलिक फॉर लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर ई वे बिल नहीं बनाना क्योंकि ये जीएसटी के दायरे के बाहर है. इसके जीएसटी के कोई चोरी का चक्कर ही नहीं है. फिर शेड्यूल 3 में जो सप्लाईज हैं जैसे हाई सी सेल्स हैं उसके ऊपर ई वे बिल नहीं बनाना. अभी हमने कस्टम पोर्ट से लेकर आईएसडी आईसीडी की बात करी थी. अब ये एंट्री उल्टी बात कर रहा है. आईसीडी से कस्टम पोर्ट में अगर कोई गुड्स जा रहे हैं तो उसके ऊपर ई वे बिल नहीं बनाना. फिर गुड्स आर बीन ट्रांसपोर्टेड आर ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम और टू नेपाल और भूटान. मतलब नेपाल और भूटान आप अगर लोकेशन देखें तो वहां तक कुछ गुड्स जो शिप से आता है ना वो डायरेक्ट नेपाल और भूटान तक नहीं पहुंच पाता. तो जो ट्रांजिट इन ट्रांजिट गुड होते हैं और वो जा रहे हैं नेपाल और भूटान तो उसके ऊपर ई वे बिल नहीं बनाना. एक बहुत स्पेसिफिक एंट्री है कि जो डिफेंस की जो कैंटीन है उसके लिए जो गुड्स जा रहे हैं CST 2 यूनिट रन कैंटीन्स, ये डिफेंस की अपनी स्पेशल कैंटीन्स हैं, उनके लिए जो गुड्स जा रहे हैं उस पर ई वे बिल नहीं बनाना. और यूनिट रन कैंटीन्स किसी ऑथोराइज कस्टमर को देना उस पर ई वे बिल नहीं बनाना. सप्लाई ऑफ हेवी वाटर, न्यूक्लियर फ्यूल्स बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी टू NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस पे ई वे बिल नहीं बनाना. Any movement of goods caused by defense formation under Ministry of Defense as a consigner or consignee, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कोई भी मूवमेंट हो रही है उसमें कोई भी गुड्स इन्वॉल्व है उसमें ई वे बिल नहीं बनाना. कंसाइनर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल अथॉरिटी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल. तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन लोकल अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट कर रही है गुड्स फॉर ट्रांसपोर्ट बाय रेल तो इसके ऊपर ई वे बिल नहीं बनाना. एम्प्टी कार्गो जा रहे हैं, खाली डब्बे वापस जा रहे हैं, उसके ऊपर ई वे बिल नहीं बनाना. ई वे ब्रिज, ई वे बिल नहीं बनाना. वे ब्रिज तक अगर वे करने के लिए अगर गुड्स जा रहे हैं और वो जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर तक का ही है, बट ई वे बिल नहीं बनाना लेकिन डिलीवरी चालान बनाना है. एम्प्टी सिलेंडर्स फॉर पैकिंग, मतलब एलपीजी के जो खाली सिलेंडर अगर वापस जा रहे हैं उस पर ई वे बिल नहीं बनाना. तो यहाँ पे किस सिनेरियो में ई वे बिल बनेगा और क्या वैलिडिटी है ये हमने डिस्कस कर लिया. अभी कोई क्वेश्चंस हैं तो बता दो. मैम, एक आशा मैम का एक क्वेश्चन है. इज देयर एनी सिचुएशन वेयर ओनली पार्ट ए इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड? ये सिचुएशन है कि ओनली पार्ट ए इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, लेकिन ये लास्ट में करेंगे. अच्छा. और एक और है, विल एम्प्टी सिलेंडर लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर रिक्वायर्ड ई वे बिल? हाँ, तो एम्प्टी कार्गो है ना, अच्छा. आप इस एग्जाम्पशन को यूज करिए. अब हम आते हैं रूल 138E पे. रूल 138E क्या कह रहे हैं कि ई वे बिल एक गवर्नमेंट ने सुविधा दी है, हमें पता चला है कि आसानी से आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक मूवमेंट ऑफ गुड्स कर सकते हैं. तो वो चाहती है कि ये सुविधा वो कंप्लायंट टैक्स पेयर्स को ही दे. जो नॉन कंप्लायंट टैक्स पेयर्स है उसको वो एक्सटेंड नहीं करना चाहती हेल्प. तो गवर्नमेंट ने इस ई वे बिल के माध्यम से नॉन कंप्लायंट टैक्स पेयर्स पे एक तरह से एक पेनल्टी कह लो या एक तरह से उसको कंप्लायंट बनने के लिए मोटिवेट भी किया है. और कैरेट एंड स्टिक अप्रोच में ये एक स्टिक है कंप्लायंट नॉन कंप्लायंट टैक्स पेयर्स के लिए कि वो कंप्लायंट बन जाए. और वो क्या स्टिक यूज कर रही है, उन्होंने कहा कि आप ई वे बिल नहीं जनरेट कर सकते अगर आप इन 4 सिनेरियो में फॉल कर रहे हो. या तो आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हो अंडर सेक्शन 10 और आपने 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए अपना फॉर्म GST CMP 08 नहीं बनाया,
आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर नहीं हो, आप रेगुलर टैक्स पेयर हो, लेकिन आपने 2 कॉन्सिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए अपना GSTR 3 भी नहीं भरा। आप अदर देन कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हो और आपने GSTR 1 2 टैक्स पीरियड के लिए 2 months या 2 quarters के लिए आपने अपना GSTR 1 नहीं बनाया। बीइंग अ पर्सन जो कि जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया, इन चारों सिनेरियो में गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको ई वे बिल बनाने के लिए इजाजत नहीं देंगे। इसमें एक चेंज आया था। चेंज से पहले क्या था, अगर हम वो समझ लें तो चेंज क्यों आया था ये हमारे लिए समझना इजी हो जाएगा। चेंज से पहले क्या था, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप या तो सप्लायर हो या रिसिपिएंट ऑफ गुड्स, दोनों कंसाइनी या कंसाइनर, दोनों ही केस में आपने ये चारों में से कोई सी वायलेशन कर दी तो हम ई वे बिल नहीं जनरेट करने देंगे आपको। बट बहुत सारी पेटिशंस गवर्नमेंट के पास पहुंची कि उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर एज अ रिसिपिएंट अगर मैं ये सारी वायलेशन करता हूँ और मैं रिसिपिएंट हूँ तो सप्लायर की क्या गलती है, उसको तो आप मेरे तक गुड्स तो पहुंचाने दो। सप्लायर की सेल्स भी इस वजह से रुकती है कि वो ई वे बिल ही नहीं रेस कर सकता। अगर रेसिपिएंट कोई गलती कर रहा है उसके लिए आप सप्लायर की सेल्स क्यों मिस करवा रहे हो। तो गवर्नमेंट ने बात मानी और गवर्नमेंट ने वर्डिंग्स जो इस सेक्शन 130 रूल 138E में करे और वो उन्होंने कह दिया कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन इन हु इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स उस और वो ये सारी वायलेशन कर रहा है, उस केस में ही इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब अगर वो सप्लायर है और ये वायलेशन करता है तो ही ई बिल उसके लिए रोका जाएगा। अदरवाइज अगर वो रेसिपिएंट है और ये वायलेशन करता है तो उसके लिए ये ई बिल बनाने की ये रोक नहीं लगेगी। साथ ही उन्होंने एक प्रोवाइजो डाल के कह दिया कि कमिश्नर के पास अगर आपका जेन्युइन केस है, आप किसी वजह से नहीं रिटर्न भर पा रहे हैं या आपका सस्पेंड हुआ हुआ है बट आप जेन्युइन पार्टी हो, तो कमिश्नर के पास एक छोटी सी पावर दी गई है कि आप कमिश्नर को एप्लीकेशन दे के अपना ई वे बिल जनरेट करने की जो सुविधा है वो ऑफिस से एक्टिवेट करा सकते हैं। और वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे कमिश्नर जी और वो ऑर्डर देंगे, सब ठीक है। अब आती है इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स एंड मूवमेंट। अब आपने ई वे बिल जनरेट कर लिया, अब आप अपने जो गुड्स हैं लेके जा रहे हो फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी। उसमें गवर्नमेंट के पास पावर्स जो दी गई हैं वो दी गई हैं सेक्शन 68 में, और कहा गया है कि जो पर्सन इन चार्ज है उसको गवर्नमेंट बोलेगी मे रिक्वायर कि वो कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स के साथ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट जो कि होगी 50,000 की, अगर वो लेके जा रहा है तो उसको डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने हैं, वो होगा इनवॉइस और ई वे बिल, और उसको डिवाइसेस RFID जो कि अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ इसमें भी अपना ई वे बिल और इनवॉइस को लोड करके लेके जाना है। जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड होंगे और हमारे पास पावर्स है कि हम कन्वेंस को रोक के कन्वेंस को इंटरसेप्ट करके हम गुड्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये पावर्स गवर्नमेंट के पास सेक्शन 68 में है। अब रूल 138 बताता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स पर्सन इन चार्ज, मतलब ड्राइवर, पर्सन इन चार्ज हो गया ड्राइवर ऑफ द कन्वेंस को ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। क्या है, इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान, कॉपी ऑफ ई वे बिल, और ई वे बिल नहीं हो वो चलेगा, हाँ वो चलेगा, वो इस केस में मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रेल एयर एंड वेसल, जो कि उसमें पार्ट बी अपडेट करना बाद में था तो उन्होंने यहाँ पे भी एग्जाम्पशन डाल दी कि पर्सन इन चार्ज के पास अगर ई वे बिल नहीं भी होगा और वो ट्रैवल कर रहा है बाय रेल एयर और वेसल तो वो वैलिड रहेगा।
तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो रहा था मार्केट में कि क्या अगर ई इनवॉइस जब एप्लीकेबल हो गया था तो क्या फिजिकल कॉपी ऑफ इनवॉइस भी रखना इम्पोर्टेंट है? तो गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाल के बोला कि नहीं, नो नीड टू कैरी फिजिकल कॉपी। आप अगर ई इनवॉइस है तो आप, अगर आपके पास उसकी सॉफ्ट कॉपी भी है तो चलेगा। तो कई बार ये एक्चुअली ये इसलिए मैं हाईलाइट किया है क्योंकि कई बार रोड पे वो दे आर नॉट अवेयर ऑफ द लॉ और वो इसी बात पे गुड्स को जब्त कर लेते हैं। तो अगर द कंसल्टेंट इज वेल अवेयर तो वो इजीली उनको गाइड कर सकते हैं कि भाई ऐसा लॉ में लिखा हुआ है और सर्कुलर आ चुका है। फिर वेरिफिकेशन, जो कमिश्नर अपने ऑफिसर्स को ऑथराइज करेगा वो इंटरसेप्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे ई वे बिल को। अगर उनको कोई डिस्क्रिपेंसी निकल के आती है तो 24 घंटे के अंदर वो उस डिस्क्रिपेंसी की एक समरी रिपोर्ट डालेंगे पोर्टल पे, और फुल रिपोर्ट जो होगी वो 3 डेज ऑफ इंस्पेक्शन लोड करेंगे प्लस 3 डेज एक्सटेंशन कमिश्नर से लेके 6 दिन के अंदर उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट डालेंगे। ये हम कर चुके हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट में। नेक्स्ट आता है कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी पॉइंट आउट हुई तो अब डिटेन, सीज और कन्फिस्केट, ये 3 शब्द हमको काफी सुनने को मिलते हैं, लेकिन क्या ये 3 शब्द सेम है? नहीं। और इनको समझना बहुत आसान है। अगर आप ये समझ लो कि एक जो ओनर ऑफ द गुड्स है उसके पास 2 राइट्स होती हैं, राइट ऑफ पोजेशन एंड राइट टू यूज द गुड्स। मतलब इसकी पोजेशन मेरे पास रहेगी अगर मैं ओनर हूँ, और उसको मैं यूज कर सकती हूँ। तो इन 3 शब्दों का जो डिफरेंस है वो आराम से निकल के आएगा। अगर डिटेंशन की बात की जाए तो डिटेंशन क्या होता है कि मैं ओनर हूँ गुड्स की और पोजेशन भी मेरे पास ही है और राइट टू यूज भी मेरे पास ही है। गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको रोक दिया है कि मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रही, अपनी राइट्स को, अपने गुड्स को एक्सेस नहीं कर पा रही। बस हाथ लगा दिया है कि भाई अब आपने गुड्स को छुओगे नहीं, पोजेशन हमारी है लेकिन उसको छूने की पावर नहीं है। जैसे एक सील लगा दी, डिटेन कर दिया कि भाई आप छुओगे नहीं, गुड्स आपके ही है पोजेशन में और आप ही की, आपके पास ही राइट ऑफ यूज है। सीजर में क्या होता है, गवर्नमेंट अब उसकी पोजेशन अपने पास उठा के रख लेती है कि अब गुड्स की पोजेशन मेरे पास है तुम्हारे ही, राइट टू यूज तुम्हारी है, पोजेशन गवर्नमेंट के पास आ गई। कन्फिस्केशन में क्या होता है कि ओनरशिप ही गवर्नमेंट के पास चली जाती है। मतलब है कि गवर्नमेंट की ही पास गुड्स होंगे और गवर्नमेंट ही उसको यूज करेगा। तो कंप्लीट ओनरशिप हैज गॉन टू द गवर्नमेंट इन द थर्ड सिनेरियो। इन द कन्फिस्केशन, नाउ द गुड्स no longer belong to the taxpayer or the person claiming to be the owner of the goods. It is now the goods of the government. अगर इन ट्रांसिट कोई वायलेशन पकड़ी गई तो गवर्नमेंट उन गुड्स को 2 काम कर सकता है, या तो डिटेन कर सकता है या सीज कर सकता है। मतलब उसकी पोजेशन या तो आपको एक्सेस डिनाई करेगा कि आपके गुड्स हैं लेकिन हम आपको एक्सेस नहीं करने दे रहे, या उसको सीज कर लेगा और गुड्स को लेके अपने पास रख लेगा। ठीक है। और आपको छुटाने के लिए क्या करना है, आपको छुटाने के लिए अगर जो ट्रांसपोर्टर इज कमिंग फॉरवर्ड तो वो पे करेगा पेनल्टी ऑफ 200% ऑफ द टैक्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2022। इससे पहले ये वर्ड था टैक्स प्लस पेनल्टी इज इक्वल टू 100% ऑफ द टैक्स। गवर्नमेंट के ऊपर जब गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन बनाया था, इफेक्टिवली दोनों वैल्यू सेम आती है, 200% ऑफ द टैक्स या टैक्स प्लस 100% ऑफ द टैक्स, दोनों बातें सेम ही, वैल्यू वाइज सेम ही आएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने चेंज क्यों किया? गवर्नमेंट के पास जब वो टैक्स लेती थी किसी भी टैक्स पेयर से, कंसाइनर से, और उसका गुड्स रिलीज करती थी, तो टैक्स पेयर एक फाइट रहती थी कि टैक्स पेयर कहता था आपने टैक्स लिया ना मेरे से तो आप इसका क्रेडिट भी दो। गवर्नमेंट कहती थी नहीं नहीं, मैंने सेक्शन 17(5)(i) में लिख दिया है कि टैक्स विल नॉट, इनपुट टैक्स क्रेडिट विल नॉट बी गिवन फॉर द टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74
129 और 130, तो मैं आपको इसका टैक्स का क्रेडिट नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी फाइट रहती थी कि आपने जब हमारा कन्वेंस हो रहा था, हमने GSTR 1 में 3B में टैक्स पे कर दिया, अब आप ये दोबारा से टैक्स ले रहे हो। तो मतलब हमें ये टैक्स का क्रेडिट चाहिए या टैक्स ही मत लो। जब हम गुड्स को लेके जा रहे थे तब हमने पोर्टल पे इसकी इंफॉर्मेशन दी तो थी, हमने टैक्स पे किया था। आप कोई सी वायलेशन निकाल के हमारा टैक्स दोबारा ले रहे हो और फिर उसका क्रेडिट भी नहीं दे रहे। तो इस टैक्स पॉइंट पर बड़ी डिस्प्यूट रहती थी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि रुको, मैं पेनल्टी वर्ड में ही 200% ऑफ द टैक्स ले लेता हूँ, क्योंकि उन्हें हैवी पेनल्टी लगानी थी ना कि कोई भी ई वे बिल के प्रोसीजर्स जो कि उन्होंने सिंप्लीफाई किए हैं उसका मिसयूज ना हो। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने पेनल्टी जो है हैवी रख रखी थी। तो अभी भी उन्होंने हैवी कर दी, लेकिन टैक्स को वर्ड को हटा दिया। फिर अगर ओनर डजंट कम फॉरवर्ड टू पे, मतलब कोई और कहता है कि हाँ मुझे ये गुड्स दे दो, ये मेरे हैं, तो उस केस में उसकी जो पेनल्टी है वो 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 200%, 50% ऑफ द वैल्यू CGST में है। CGST SGST में देखा जाए तो पूरे गुड्स की जो वैल्यू है 100%, मतलब पूरे गुड्स की वैल्यू पे करके ही उसको गुड्स मिलेंगे, और 200% ऑफ द टैक्स विच एवर इज हायर। फिर जो अमाउंट अगर एग्जेम्प्टेड है तो एग्जेम्प्टेड में टैक्स की फिगर तो है नहीं, तो उन्होंने लिख दिया 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। क्योंकि टैक्स की इवेजन नहीं हो रही तो उन्होंने मिनिमम पेनल्टी या मैक्सिमम पेनल्टी 25,000 रुपए की लगाई है। फिर अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं और ओनर इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड तो उन्होंने लिखा है 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। और उसके बाद डेफिनेशन ऑफ ओनर ऑफ द गुड्स, काफी जगह ये भी डिस्प्यूट हुआ कि हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स, इसकी कोई डेफिनेशन वगैरह तो है नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन निकाली और बोला कि जो या तो कंसाइनर या कंसाइनी दोनों में से कोई भी ओनर ऑफ द गुड्स माना जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी नहीं आधा लेने क्लेम करने गुड्स को, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर डिटरमाइन करेगा हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स। अब प्रोसीजर क्या रहेगा आफ्टर डिटेंशन ऑफ द गुड्स? 7 दिन के अंदर जो है गुड्स जब डिटेन या सीज हो जाए तो 7 दिन के अंदर उसके ऊपर नोटिस जाएगा टैक्स पेयर के ऊपर। फर्दर 7 डेज के अंदर ऑर्डर आएगा। रिप्लाई का कोई समय नहीं दिया हुआ है, 7 डेज में नोटिस आया, नोटिस को आपने सपोज 7 डेज में ही रिप्लाई किया, लेकिन गवर्नमेंट ने रिप्लाई की डेट नहीं ऐड करी है, उन्होंने सीधे कहा है कि नोटिस के 7 दिन के अंदर ऑर्डर इशू हो जाना चाहिए। और रिप्लाई अगर आप लेट हो जाते हो, कंसिडर नहीं कर पाते, तो उससे गवर्नमेंट ने कोई लिंकिंग नहीं करी है। गवर्नमेंट ने फ्लैट 29 डेज लिखी है, जो कि सेक्शन 129 की पेनल्टी जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। 7 डेज में नोटिस आया, उसके 7 डेज में ऑर्डर लिखना है, और फिर 15 दिन मिलेंगे आपको पेनल्टी और टैक्स को दोनों को पे करने के लिए। तो 7 + 7 + 15, 29 डेज में आपका जो प्रोसीडिंग्स है वो क्लोज हो जाएंगी। अगर आप नहीं देते पेनल्टी तो दोनों चीज़ें, गुड्स भी और कन्वेंस भी, दोनों आपके जब्त कर लिए जाएंगे और उनको बेच के अपने टैक्स की रिकवरी की जाएगी और पेनल्टी की रिकवरी की जाएगी। बट जो कन्वेंस है उसको ट्रांसपोर्टर छुटा सकता है ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी विच इज 100% ऑफ द टैक्स और 1 लाख विच एवर इज लेस। तो मैक्सिमम उसका 1 लाख का आएगा लाइबिलिटी, और ट्रांसपोर्टर अपना व्हीकल लेके जा सकता है। अगर व्हीकल नंबर ई वे बिल में नहीं लिखा हो तो क्या 129 की पेनल्टी अट्रैक्ट होगी? द आंसर इज यस। उन्होंने सर्कुलर लिख के तक बताया कि अगर आप पार्ट भी नहीं भरोगे ना तो इनवैलिड इनवॉइस रहेगा, इनवैलिड ई वे बिल रहेगा और उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। लेकिन क्या हो रहा था कि कई बार माइनर सा एरर रह जाता था, जैसे कंसाइनी कंसाइनर के नाम में SH में
एस रह गया, एच रह गया, या कोई छोटा मोटा एरर, लेकिन डिपार्टमेंट को तो लगता था कि यार वाह तो छोटा सा भी एरर है तो क्या हो गया, एरर तो है ना, हम तो इसको इवेजन में क्लब करेंगे, हम तो इसके ऊपर 200% की पेनल्टी लगाएंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे थे, तो एक सर्कुलर ही निकाल दिया गवर्नमेंट ने और कहा कि ये माइनर एरर्स को आप इवेजन का रूप मत दीजिए, और इन केसेस में अगर पिन कोड में कोई एरर है लेकिन इन टोटलिटी जो पिन कोड है, जो एरिया है वो सही है, और जो वैलिडिटी है वो एक्सटेंड नहीं हो रही, एड्रेस में कोई इशू है, 1 और 2 डिजिट में कोई इशू है, तो ये सब छोड़ दीजिएगा। आप 500 रुपये SGST, 500 रुपये IGS CGST, IGST में 1000 रुपये लेके आप छोड़ दीजिएगा। फिर ये सारे फॉर्म्स हैं जो कि हमको ई वे बिल के उसमें दिखने रहेंगे। हम एक दो सिनेरियो से समझते हैं कि होता क्या है। लोकेशन ए, लोकेशन बी, गुड्स गए और ये ऑफिसर ने कन्वेंस को पकड़ लिया। उन्होंने वेरीफाई किया, उनको 2 चीज़ें वेरीफाई करनी है गुड्स के साथ, ई वे बिल और टैक्स इनवॉइस। दोनों चीज़ों को गुड्स के साथ मिलाना है, बस सिंपल सा उनका एक ही काम है, गुड्स को काउंट करना है और ई वे बिल और टैक्स इनवॉइस में जो डिटेल्स है वो सब मैच करनी चाहिए। ऑफिसर ने देखा कि अरे ये तो 18-19 लाख के गुड्स जा रहे हैं उसमें, अरे वाह 3.5 लाख का टैक्स है और पेनल्टी लग जाएगी इस पे 7 लाख रुपए के करीब की, चलो इसको पकड़ लेते हैं। उन्होंने बोला वायलेशन क्या है कि आपका जो ई वे बिल है वो एक्सपायर हो गया 19/5/2022 को, और जो आप गुड्स को लेके जा रहे हो आज 20/5/2022 4 बज रहे हैं, तो हम आपका ई वे बिल जो है एक्सपायर्ड है, इस करके हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं 7 लाख रुपए। जो टैक्स पेयर है वो जो लड़का है उसने बोला कि सर मेरा एक्चुअली एक तो बीच में कन्वेंस ब्रेक डाउन हो गया था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है टैक्स की चोरी करने का। इसमें जब भी ई वे बिल जब ई वे बिल की वजह से या टैक्स इनवॉइस की वजह से जब आपके जो गुड्स हैं वो जब्त किए जाते हैं, डिटेन सीज किए जाते हैं, तो सबसे पहली दलील जो ये देनी है कि हमें टैक्स की चोरी नहीं कर रहे थे, हमारा बोनाफाइडी केस है। तो उसने भी यही बोला कि मेरा बोनाफाइडी केस है, 4 बज रहे हैं, सिर्फ 4 घंटे दूर, और मैं वेव ब्रिज तक लेके जा रहा था, एक्चुअली तो मैं सप्लायर तक लेके गया था, लेकिन वहाँ पे पता चला कि मैंने उसका वेव ब्रिज पे वे नहीं कराया, तो मैं अब वेव ब्रिज पे लेके जा रहा हूँ। ऑफिसर ने लगा दी पेनल्टी, हाई कोर्ट तक बात गई और हाई कोर्ट में ऑनरेबल जज ने कह दिया कि नहीं नहीं, बोनाफाइड केस है, आप इस पे पेनल्टी मत लगाइए। दूसरा ऐसे ही केस हुआ कि जब 20 किलोमीटर दूर ही थी गाड़ी और बीच में एक बार ब्रेक डाउन भी हो गया था, तो ऑफिसर ने पेनल्टी लगा दी। हाई कोर्ट तक बात गई और हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं नहीं, आपके पास हमने सुविधा दी है ना कि आप ई वे बिल को एक्सटेंड करा सकते हो, तो क्यों नहीं कराया आपने एक्सटेंड, हम तो पेनल्टी मानते हैं वैलिड है और हम आपकी बोनाफाइडी को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इससे अगर हम एज ए कंसल्टेंट टेक अवे, मतलब व्हाट शुड वी टेक अवे इज वन, कि अगर आपका पकड़ा जाए और आप पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज कर दी जाए, तो एक तो आप अपनी बोनाफाइडी को ही प्रेस करते रहिए कि हम टैक्स एवेड नहीं कर रहे थे, और अगर फिर भी, क्योंकि उसके बाद तो जज के पास है कि सब जज अलाउ करे नहीं करे, तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आपके पास एक एडुकेट आपको गाइड करना चाहिए स्टाफ को कि ई वे बिल जब तक एक्टिव रहे और कोई मॉनिटर करता रहे, जब तक कि गुड्स कंसाइनी तक नहीं पहुंच जाते कि वो ई वे बिल इफेक्टिव है नहीं है, कब एग्जैक्ट टाइम कब वो इनवैलिड हो रहा है, और गुड्स रीच कर जाए उस विद इन द टाइम, अगर नहीं रीच कर पा रहे तो ई वे बिल को एक्सटेंड कराया जाए। तो एक एक्टिव प्रोएक्टिव अप्रोच भी ले ली जा सकती है कि भाई जो भी गुड्स जा रहे हैं, क्योंकि बहुत हैवी पेनल्टी है, 200% ऑफ द टैक्स, कोई मजाक नहीं है, काफ़ी हैवी पेनल्टी है। तो आप इससे अच्छा, तो इस पेनल्टी में उलझने से अच्छा है कि एक पर्सन को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए कि ही विल एक्टिव रहना चाहिए बिफोर इन एवरी सिनेरियो, जब तक गुड्स लोकेशन तक नहीं पहुंच जाते हैं। तो यही सारी बातें इन कुछ केसेस में डिस्कस हुई, जो कि मैंने फॉर फर्दर यूज आपके लिए पॉइंट आउट कर दिए, जो अभी मैंने आपको बताई।
मैम कुछ क्वेश्चंस हैं, आप हाँ अभी लोगे? हाँ, अब मैं ले सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा लास्ट टॉपिक है कन्फिस्केशन। उससे पहले आप जो भी कोई आई question- थिंक पहले आप कंप्लीट कर लो, मे बी शायद उसमें कवर ही हो जाए आपका क्वेश्चन, क्या पता। हाँ ठीक है, मैं हाँ, एक 10 मिनट बार। लूंगी। हाँ, हाँ हाँ, फिर क्वेश्चंस ले लेते हैं सारे फिर इकट्ठे। क्वेश्चंस एक साथ ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें ज्यादा मैं फोकस नहीं करने वाली। हम्म। ये है कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स। कॉन्फिस्केशन क्या हुआ कि ये आपके गुड्स उठा के अब आपके नहीं रहे, वो अब वो गवर्नमेंट के हो गए। और सेक्शन 130 है, स्पेसिफिक है कि 5 सिनेरियो में गुड्स आपसे उठा के ले लिए जाएंगे और गवर्नमेंट के बना दिए जाएंगे। वो क्या है कि अगर आप कोई गुड्स सेल करते हो, टैक्स नहीं लगाते, इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स। आप कोई गुड्स रिसीव कर रहे हो, उस पर टैक्स नहीं लगा हुआ। आप कोई गुड्स को अकाउंट नहीं कर रहे, इन एंड आउट कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे कर रहे। आपने रजिस्ट्रेशन, आप लायबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन आप बिना रजिस्ट्रेशन लिए गुड्स को परचेज सेल कर रहे हो। आप कोई सा भी एक्ट का प्रोविजन या रूल वायलेट कर रहे हो जस्ट टू एवेट द पेमेंट ऑफ टैक्स। या आप एक कन्वेंस के मालिक हो, आप ट्रांसपोर्टर हो, और आपका कन्वेंस यूज हो रहा है इन ट्रांसपोर्टिंग सच टैक्स एवेडेड गुड्स, तो इस केस में आपका कन्वेंस भी कन्फिस्केट किया जा सकता है। और गुड्स और कन्वेंस बोथ शैल बी लायबल फॉर कन्फिस्केशन। बट अगर आप ट्रांसपोर्टर हो और आप ये कह देते हो कि नहीं, मेरी तो कन्वेंस प्रूव्स दैट इज द गुड्स वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर विद एन इंटेंशन टू एवेट टैक्स, ये मेरे को नॉलेज ही नहीं थी और मेरी कनाइवेंस नहीं है, तो आपका कन्वेंस को कॉन्फिस्केट नहीं करेंगे, अदरवाइज कन्वेंस भी कॉन्फिस्केट हो जाता है। और अगर आपका कन्वेंस कॉन्फिस्केट हो जाता है या गुड्स कॉन्फिस्केट हो जाते हैं, तो उसको छुटाने के लिए आपको कितनी फाइन या फीस देनी है? आपका फाइन है मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स। इसमें अगर कोई बताना चाहे कि मार्केट वैल्यू क्यों लिखा है, वैल्यू ऑफ द गुड्स क्यों नहीं लिखा, जैसे अभी हमने 129 में पढ़ा था ना, वैल्यू ऑफ द गुड्स, जो कि इनवॉइस वैल्यू होगी। अभी यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू की जगह मार्केट वैल्यू क्यों लिखा है? इनवॉइस वैल्यू तो कम करके भी लेके जा सकते हैं ना। हाँ, क्योंकि ये हम कन्फिस्केशन का केस समझ रहे हैं। कन्फिस्केशन मतलब इवेट द पेमेंट ऑफ टैक्स। कोई झूठ बोल के लेके जा रहा है, तो अगर वो सपोज उसका 5 लाख का माल जा रहा है, लेकिन वो क्योंकि जस्ट उसे ई वे बिल नहीं बनाना, उसने उसकी वैल्यू कर दी 50,000 रुपए, तो आप 50,000 दे के थोड़ा छूटेंगे वो गुड्स। अब तो 5 लाख रुपए मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स, जो 5 लाख रुपए है वो दे के छूटेंगे गुड्स, लेस द टैक्स चार्जेबल देयर ऑन। और उन्होंने एक ये जो अपर लिमिट है, एक लोअर लिमिट भी लगाई है, विच इज 200% ऑफ द टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स। मतलब 200% ऑफ द टैक्स तो देना ही देना है, लेकिन हाईएस्ट कितना हो सकता है? मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स लेस टैक्स चार्जेबल देयर ऑन तक भी हो सकता है। और कन्वेंस यूज फॉर कैरेज ऑफ गुड्स, इसको भी फाइन इक्वल टू टैक्स पेएबल देके इसको छुटाना है। और वही नॉर्मल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देनी होगी। टाइटल ऑफ द गुड्स ऑन कन्फिस्केशन बिकम्स शैल बी इन्वेस्टेड इन द गवर्नमेंट। मतलब अब गुड्स जो हैं वो टैक्स पेयर के नहीं रह गए। कन्फिस्केशन का मतलब है टाइटल ही गवर्नमेंट के पास चला गया, वो गवर्नमेंट के गुड्स हो गए। कुछ केस लॉज के माध्यम से हम समझते हैं कि होता क्या है, ऑन फील्ड क्या होता है। जब गुड्स जा रहे थे और आईजीएसटी उस पर लगा हुआ था, तो एसजीएसटी ऑफिसर्स आ गए चेक करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो टैक्स पेयर है उसने कंटेस्ट किया कि एसजीएसटी ऑफिसर्स मेरे गुड को नहीं इंस्पेक्ट कर सकते, आईजीएसटी ऑफिसर्स ही कर सकते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ही कर सकते हैं। तो ये केस गया, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा नहीं, एसजीएसटी ऑफिसर्स के पास भी पावर्स हैं। कई बार क्या होता है कि जो ऑफिसर चेक कर रहा है उसको क्या चेक करना है? ई वे बिल, इनवॉइस और गुड्स, उसको 3 चीजें मिलानी है। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, इसका आपने गलत क्लासिफिकेशन किया है, ये 28% के नहीं है, ये 15% के गुड्स हैं, ये 12% के गुड्स हैं, या 18% के गुड्स हैं। आप ने गलत क्लासिफिकेशन लिए और हम आपके गुड्स को डिटेन करते हैं। तो
हाई ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ये आपका काम नहीं है कि आप क्लासिफिकेशन चेक करिए। आपका काम है सिर्फ अगर कोई ईवेबल इनवॉइस और गुड्स के बीच में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप गुड्स को डिटेन करिए। आप अपना जो आपको एज पर रूल्स जो बात कही गई है वही आपकी ड्यूटी है। आपको अपने आप से नई नई चीज़ें नहीं लिखनी कि क्लासिफिकेशन गलत है तो मैं जब्त कर लेता हूँ। गुड्स कैनॉट बी डिटेन फॉर मेयर डेफिशिएंसी इन लॉरी रिसिप्ट। अच्छा, एक बारी लॉरी रिसिप्ट में कुछ फिगर्स अलग थी लेकिन ईवे बिल और इनवॉइस दोनों सही बने हुए थे, लेकिन लॉरी रिसिप्ट में कुछ गलती पाई गई। तो भाई लॉरी रिसिप्ट तो डॉक्यूमेंट ही नहीं था जो आपको देखना था। हमने देखा ना सेक्शन 1 रूल 138A में कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, तो उसमें तो लॉरी रिसिप्ट लिखा ही नहीं था। आप फालतू में उसको चेक करके हमारे गुड्स डिटेन कर रहे हो, तो वो नहीं हो सकता। आर्बिट्री इलीगल डिटेंशन नहीं करनी। और एक बारी तो हुआ कि इंशा ट्रेडिंग का ये केस बहुत प्रसिद्ध गया, ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का केस था। और इस केस में वो जो डीलर था वो अपने गुड्स लेके जा रहा था फ्रॉम ए प्लेस टू बी प्लेस, लेकिन जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा ये फ्रॉडुलेंट डीलर है, इसने जो पिछले महीने जो 42 ई बिल जनरेट करे हैं उन सब पे इतना टैक्स बनता है और उसने टैक्स नहीं पे किया, और उसके जो परचेजर्स हैं वो भी फ्रॉडुलेंट है, नॉन एग्जिस्टेंट है, तो हम इसके इसलिए इसके गुड्स को डिटेन कर रहे हैं। तो सर इवन हाई कोर्ट ने अग्री किया टैक्स पेयर के साथ कि आपको सिर्फ ईवे बिल और टैक्स इनवॉइस ये दोनों चीज़ें मैच करनी है विद द गुड्स। अगर वो फ्रॉडुलेंट टैक्स पेयर है, आपके पास और मैकेनिज्म्स गिवन है इन द जीएसटी एक्ट, आप उनको यूज करिए। आप सेक्शन 129 की प्रोसीडिंग्स के तहत उन गुड्स को डिटेन या सीज नहीं कर सकते। आपको प्रोसीजरल नॉर्म्स को फॉलो करना है। और आप जैसे हम डिस्कस कर रहे थे अंडर वैल्यूइंग द गुड्स, आप ईवे बिल की रिक्वायरमेंट को एस्केप नहीं कर सकते गुड्स को अंडर वैल्यू करके। एक जो आशा जी ने सिनेरियो डिस्कस किया था कि हम क्या सिर्फ पार्ट ए भरें, ऐसा भी कोई सिनेरियो है? द आंसर इज यस। न्यूली इंट्रोड्यूस रूल 138F जो कि आया है फॉर ज्वेलरी, गोल्ड, प्रेशियस स्टोन्स जनरेशन। तो गोल्ड, प्रेशियस स्टोन्स जो कि हमने अभी सीरियल नंबर 4 और 5 में पढ़े थे एनेक्चर में, उस केस में उन्होंने बोला है कि इन दोनों केसेस में जो गोल्ड ज्वेलरी ये सब प्रेशियस मटेरियल है और कंसाइनमेंट वैल्यू नॉट बिलो 2 लाख है, 2 लाख से ऊपर के, इस केस में भी ई वे बिल को प्रोसीजर को बना दिया गया है रूल 138F तक, लेकिन इसमें सिर्फ पार्ट ए ही बनाना है, इसमें पार्ट बी नहीं बनाना। मतलब इसमें गुड्स के जो व्हीकल की डिटेल है वो नहीं डालनी। और ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स दी गई हैं कि वो इंट्रा स्टेट मूवमेंट के लिए ये जहां वो चाहे वो मैंडेटरी कर सकती है। सो ये ऑप्शनल है, ये एक रूल बना दिया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट इसको इफेक्टिव करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अगर दिल्ली की बात करी जाए तो अभी कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई है जहाँ पे ये रूल्स को इफेक्टिव किया गया हो। इस रूल में भी वही लिखा है कि इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड इन पार्ट बी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी फर्निश। इसमें सिर्फ पार्ट ए बनेगा, पार्ट बी बनेगा ही नहीं। और इसको तो बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। 24 आवर्स के अंदर आप कैंसिल कर सकते हो, इंस्पेक्शन से पहले पहले कैंसिल कर सकते हो। और ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है अगर कस्टम पोर्ट से जा रहा है आईसीडी तक या वापस आईसीडी से कस्टम पोर्ट। और बाकी के प्रोविजन जो 138A B C D E में हमने पढ़े हैं वो सेम अप्लाई करेंगे मोटेंडस मोटेंडस। तो यहाँ पे मेरा डेलिब्रेशन खत्म होता है। मैं क्वेश्चंस लेना चाहूंगी जो कि बीच में आए हूँ। यस मैम, ये यहाँ से लेते हैं। If delivery charges, freight is separately mentioned on invoice because of it invoice value exceeds threshold limit,
e-way bill will be required or हम्म not? डिलीवरी वो चार्जेस की वजह से अगर इंक्रीज होता है इनवॉइस का वैल्यू। हाँ तो अरे ये आप देखो, जो वो टैक्स भी लगा रहे हैं, तो टैक्स जो लगता है वो फ्रेट के बाद लगता है कि फ्रेट के पहले लगता है? फ्रेट के बाद बाद लगता है। तो जब वो टैक्स भी इंक्लूड कर रहे हैं तो फ्रेट को क्यों छोड़ेंगे? तो ऑब्वियसली फ्रेट भी इंक्लूड होएगा। A supplier issues two bills on the same day to the same buyer, each below 50,000, हाँ, ये मैं भी डिस्कस करना चाहती थी। but both are transported in one vehicle. ये मैं healthy question. EWB required. हाँ हाँ जी, ये ना मैं बताती हूँ सिनेरियो। ये मैम ने जो भी लिखा है, आशा मैम ने, मैं उसको समझाती हूँ। एक क्वेरी ये मेरे पास भी आई थी। देखो, एक ट्रेडर बोलता है कि मैडम, मैंने कहा आप जीएसटी में काम करो, मैंने कहा हाँ जी। तो वो कहते हैं कि आप ना मेरी समझो, मैं एक गुड्स बेचता हूँ 50,000 से कम, और मैं दूसरा गुड्स भी बेचता हूँ 50,000 से कम। मैं एक ही ट्रांसपोर्टर को यूज कर रहा हूँ, और मैं एक ही जन को पहुंचा रहा हूँ। तो आप ये बताओ, मैंने कहा तो आपको प्रॉब्लम क्या है? मतलब मेरे को टैक्स नहीं पे करना। तो मैंने कहा तो क्या मैं कर सकता हूँ? क्योंकि देखो, आप ईवे बिल में कहीं पे भी, अभी हमने एक आध वो नहीं पढ़े, लेकिन मैं आपको पढ़ा देती हूँ इस करके ही, कि उन्होंने एक आध इसके ऊपर प्रोसीजर्स लिखे हैं। इसके ऊपर उन्होंने प्रोसीजर्स लिखे हैं, लेकिन वो ऑप्शनल कर दिए। देखो, इन्होंने लिखा है कि ऑप्शनल है। द रजिस्टर्ड पर्सन और द ट्रांसपोर्टर मे एट हिज ऑप्शन। ऑप्शन दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्टर के पास तो लेकिन 1 लाख से ज्यादा के गुड्स हो गए और सेम बंदे के हैं। तो अब बताओ कि क्या मैं कर लूँ ऐसा? मैं भी सोच में पड़ गई, लेकिन फिर मेरे को पढ़ते पढ़ते याद आए, ये हमने पढ़ा था कि मैंने कहा बात तो सही बोल रहा है कि ऑप्शनल है, तो प्रॉब्लम तो किधर होएगी? लेकिन प्रॉब्लम इधर होएगी क्योंकि वो खुद के तो माल उसके जब्त होंगे ही होंगे, कन्फिस्केट होंगे ही होंगे, क्योंकि वो सप्लाई और रिसीव कर रहा है विद एन इंटेंशन टू एवेट द पेमेंट ऑफ टैक्स। और साथ साथ वो भाई जो ट्रांसपोर्टर है, उसकी गाड़ी भी जाएगी। तो उसको कह दो कि भाई तू ट्रांसपोर्टर से पूछ ले, अगर उसको प्रॉब्लम नहीं है उसकी गाड़ी रिस्क करने के लिए, तो ठीक है, चलता है, तुम भी भेजो। तो दोनों मरोगे। मतलब है कि जो भेज रहा है उसके गुड्स तो जाएंगे गवर्नमेंट के हाथ में, कन्फिस्केशन वो तो सीधे सीधे वो ईवे बिल से 129 से निकल रहा है केस, वो आ रहा है 130 में, और उसके ऊपर लगेंगी कॉन्फिस्केशन की प्रोसीडिंग्स, और उसके गुड्स भी जाएंगे, उसके ट्रांसपोर्टर का ट्रांसपोर्ट भी जाएगा। और बट इन केस छुटाने के लिए उसको मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स देने पड़ेंगे, देनी मतलब। पड़ेगी। एंड इन केस अगर वहां पे डिफरेंट कस्टमर आ रहे हैं, देन इट कैन बी डन, लाइक ABCD 4 को अलग अलग हाँ उसने दिए, देन हाँ नो जी, हाँ इश्यूज जी, देयर। तो एक्चुअली इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं है, वो यस। रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, म्यूट पे उसमें था। Can e-way bill validity extension be done by recipient instead of supplier or transporter? नहीं, जो जिसने बनाया है वही एक्सटेंड कर सकता है। ओके। अगर रेसिपिएंट ने बनाया तो वो एक्सटेंड कर सकता है, पर जिसने भी बनाया वही एक्सटेंड कर सकता है। If goods are received but e-way bill expired during transit, can the recipient still claim ITC? यस यस। Where no movement नहीं, ये vehicle हो चुका है स्मिता, ये हो चुका है। इसमें involved. नीचे अच्छा, क्वेश्चन आ हाँ रहा है प्रकाश सर का, वो ले लो 616 से। हाँ. For transport default, who pays penalty, madam? Who pays penalty? जिसको गुड्स छुटाने हैं, जो whoever comes forward as the To owner,
ऑफ द गुड्स, मतलब अगर कंसाइनर कहता है मेरे को चाहिए, तो वो पेनल्टी पे करता है। कंसाइनी कहता है मैं इसका ओनर हूँ, तो कंसाइनी पे करता है। और वैसे अगर मैं टेक अपार्ट फ्रॉम दिस, तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, वो वेरियस टाइप्स के होते हैं। एफओपी, फ्री ऑन बोर्ड, मतलब ये जो टर्म्स हैं ये तो इंटरनेशनल ट्रेड में होते हैं, लेकिन वैसे भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सेल ऑफ गुड्स के, उसमें डिफाइंड होता है कि कब ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। तो वो जो सप्लायर और कंसाइनर और कंसाइनी है, उसमें प्री डिटरमाइंड होता है कि आप जो ट्रांसपोर्टर की लायबिलिटी है, आप फ्रेट पेड गुड्स दे रहे हो या टू बी पेड गुड्स दे रहे हो। तो जो रिस्क है वो किसका है? जनरली जो कन्वेंस पे कर रहा होता है ना, उसी का ही रिस्क होता है। कंसाइनर पे कर रहा है कन्वेंस को, तो कंसाइनर का रिस्क होता है, और कंसाइनी पे कर रहा है कन्वेंस को, तो कंसाइनी का रिस्क होता है। Yes, we can say कि even in case of default by the transporter, it will be the either the buyer or the seller. उनमें हम्म, से ही किसी को ये बेयर आउट करना है, तो इट्स बेटर कि आप ट्रांसपोर्टर अच्छा चुने एंड कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्लियर रखें. वो तो जनरली ट्रेड में क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है. और, हाँ, एक और क्वेश्चन है प्रकाश सर के। बोथ गुड्स एंड गुड्स व्हीकल आर रिक्वायर्ड टू बी कॉन्फिस्केटेड और गुड्स व्हीकल कैन बी रिलीज्ड, डाउनलोडिंग गुड्स इक्वल टू पेनल्टी लेविed. For both goods and goods vehicle are required to be confiscated. हाँ, मीन्स वेदर. दोनों goods and good vehicle are required to be confiscated. Yes. Good vehicle can be released by downloading good equal to the penalty. Yes. दोनों का आंसर यस है। दोनों जब्त हो जाते हैं, गुड्स भी और कन्वेंस भी, दोनों जब्त हो जाते हैं बेसिकली। इज देयर एनी ऑप्शन दैट ओनली गुड्स आर कन्फिस्केटेड एंड व्हीकल को रिलीज कर दिया जाए जितना वो हाँ, तो पेनल्टी वो है उसके अलग लिए? है, उसकी अलग पेनल्टी है ना। अगर हम्म. अगर गुड्स को रिलीज नहीं किया जा सकता, तो उसकी पेनल्टी अलग है। ट्रांसपोर्टर कैन गेट द कन्वेंस रिलीज्ड ऑन द पेमेंट ऑफ पेनल्टी इक्वल टू टैक्स और 1 लाख विच एवर इज लेस। Yeah. So ठीक I है। think we are done with the queries today. Manoj और Khatri ji is asking, can the PPT of this session be shared with the participant? यस यस। As soon as we get it from our speaker, we will share it along with the other PPTs also. Same day we will share. Means after the series. On a single day, we will share all the presentations. yes, In case any other queries there, we can take. I think all the queries are answered. I had one query. इसमें jurisdiction क्या रहेगा penalty का? Like suppose if the vehicle is moving from West Bengal to Delhi and it has been intercepted in another state and I have no GST registration in another state and the e-waybill is generated by me in West Bengal. Then in that case, how should I proceed and what can be the procedure? Can you please guide? यस, उस केस में ना मैडम, जिस स्टेट में वो जब्त हुआ है ना, जिस स्टेट में वो डिटेन हुआ है, वहां पे वो एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करके आपका एक नया रजिस्ट्रेशन बना देते हैं, और उसमें आपकी डिमांड जो पेनल्टी है वो लोड कर देते हैं, और वो SGST प्लस CGST लगा देते हैं। ओके मैम, इसमें एक और मेरा क्वेरी था, लाइक सपोज बिकॉज गुड्स हैड टू रीच टू माय रेसिपिएंट अर्ली, तो मैंने पेनल्टी पे करके जैसे अगर वो एक बार गाड़ी छुटवा ली हम्म, और बाद में अगर मैं ये केस एस्केलेट करती हूँ तो फिर इसके क्या चांसेस रहते हैं? लाइक मैडम इसमें निकल जाता है। मैंने मैंने खुद भी एक केस पर्सनली हैंडल किया था। वो यूपी का था, तो मेरे कोई फ्रेंड थे मुंबई से, तो वो मुंबई से अप डाउन तो नहीं करते, उन्होंने मेरे को अप्रोच करके यूपी के केस को मतलब हैंडल कराया था। लेकिन वो नॉर्मल आपकी 107 की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चलती हैं।
अपील में जाना पड़ेगा इसमें। अपील में आपकी प्रोसीडिंग्स चलती हैं और उसमें ऑफिसर को आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के अपना बोनाफाइडी बता के और कि भाई क्यों आपका नहीं हुआ। मेन आपका आप जो प्रेस करना है पॉइंट वो यही है कि आपके जो इंटेंशन टू एवॉइड द पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं है। तो वो मैम वो उसी स्टेट में होगा जहाँ पे मेरा पेनल्टी पे हुआ है और उसी टेम्पररी रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट में ही होगा, राइट? हाँ जी। और वो उसी मतलब ऑब्वियसली आप अगर अप डाउन करोगे जो भी स्टेट से हो तो कन्वेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है क्योंकि करेक्ट करेक्ट सेम राइट। डे पे तो वो डिसीजन होता नहीं, कई बार हेयरिंग आगे पीछे हो जाती है, बहुत सारी चीज़ हो जाती है। तो इट्स बेस्ट टू अप्रोच अ लोकल कंसल्टेंट जो कि आपकी हेल्प कर सके। मैम आई विल गेट इन टच विद यू इन दिस मैटर। थैंक यू सो मच। Uh, any other query? Anybody who has? All queries answered. Okay. I So think we can proceed for the formal vote of thanks. So, yeah. Smita, please go ahead. Yes, thank you, ma'am. Shruti ma'am, you had a very informative e-way bill session for us, and it was quite knowledgeable and interactive session. So thanks a lot again for this session. Asha ma'am, you too. It's very nice of you that you have taken up this responsibility to, educate all of us with this GST. So this is very nice. Thank you. Thank you all the participants for participating in today's session. It was a very nice session today. Thank you, Meenakshi ji, for your appreciative words. Himanshi Chok ji, thank you so much. So thanks, Shruti ji, for your time once again. Thank you so much, and thanks to each of the participants जो कि live join कर रहे हैं session को सुनने के लिए, because आप लोगों का जो attend करते हो यही motivation होता है speaker के लिए भी और organizers के लिए भी। तो थैंक यू सो मच, एंड कल हमारा एक्सपोर्ट्स एंड रिफंड का सेशन है, तो टू डू जॉइन अस on the same time at 5 p.m. And again, thank you so much. And it's a team effort, I would say, not only me. पूरी जो हमारी एसोसिएशन है गुरुग्राम विमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, तो वी ऑल आर डूइंग इट इन अ टीम. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक्स once again. Thank you. I will be closing the meeting now. Thank you all.